Hello everyone, welcome to the video. In the income tax practical of your BCom honors syllabus, one of the most important tasks is to how to file ITR2 using the Excel utility function. So in this video, I will explain step-by-step guide how to fill the ITR2 form using a practical case scenario. Uh, firstly begin with downloading the ITR2 Excel file utility. So for downloading this, you need to open the Chrome browser and search for income tax department. After opening the income tax website, go to the download section. Here you will see that the assessment year is 25-26 and you need to file the Excel utility file ITR2. So here ITR2 file is not visible. So you need to change the assessment year. You have to change the assessment year to 24-25. Okay. After changing the assessment year, you can see that here ITR2 file is visible. This file is clickable. So click on this. You can see here that the utility Excel based file is available. Just click on the link and after downloading the file, extract the file. After extracting the file, you need to right click on the file, then click on show more options, then go on properties. In properties, you can see here unblock sign is unticked. Click on the unblock sign and apply, then OK. After clicking this, double tap and open this. You can see here the pop-up window is opening. Before starting the question, first you need to enable the macros in Excel to do work on this file. So let's learn how to enable macros in Excel. First click on the file option, then go to options, then go to trust center, then click on trust center settings. Then here you can see that macro setting. Click on macro setting and click on the enable VBA macros. After clicking on this, tick all marks and then OK. Macros will be enabled in your Excel. So let's start the video. Here in the video, I will explain step-by-step guide how to fill the ITR form using a Excel practical case. Our question is here. You can say I have taken a sample question where I have provided the name of the assessee, father's name, PAN number, date of birth and address, the employer details, the TAN number of employer, the bank name and IFSC codes, account number, etc. Scrolling down, you can see here the question. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ITR2 फाइल कौन करता है. सो ITR2 उन लोगों के लिए होता है जिनकी इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेस से होती है. यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि अगर आपकी इनकम प्रोफेशनल इनकम या बिजनेस से इनकम हो रही है तो आप ITR2 फाइल नहीं कर सकते. आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि जो हमारा असेसी अंकित है, अंकित सिंह, उसकी इनकम सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, अदर सोर्स से है एंड कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं. यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई भी इनकम नहीं है.
तो हम ITR 2 फाइल करेंगे। अब हम एक एक कंपोनेंट्स को ब्रेक करके देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट हेड है हमारा। इसमें बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, फुली टैक्सेबल होती है। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 40,000 का, ये टैक्सेबल है। देन डियरनेस अलाउंस है DA, ये भी फुली टैक्सेबल है। देन आप हाउस रेंट अलाउंस देख सकते हो, ये 2 lakhs का है। ये इसमें एग्जम्पशन मिल सकता है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, आगे हम कंडीशंस भी देखेंगे। देन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 5600 का, इसमें भी डिडक्शन आपको मिल सकती है, सॉरी एग्जम्पशन आपको मिल सकती है, ₹100 फॉर वन चाइल्ड फॉर अ ईयर। फिर आप देख सकते हो कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 5600 का, ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 के अंदर एग्जम्प्ट है, अप टू ₹100 पर चाइल्ड पर मंथ, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस के लिए। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 2 चिल्ड्रंस हैं तो हमारी एग्जम्पशन होगी 2400। देन सर्वेंट अलाउंस है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है, ₹12,000। देन हम सेकेंड हेड को देखेंगे जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अगर आप असेसी को देखें तो ये हमारे केस में सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में रहता है। तो यहाँ पे जो हाउस का स्टेटस होगा वो सेल्फ ऑक्युपाइड होगा, ना कि लेट आउट या डीम्ड लेट आउट। उसने म्युनिसिपल टैक्स 20,000 पे करा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है 1,65,000। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए एनुअल वैल्यू 0 होती है, लेकिन इंटरेस्ट का डिडक्शन हमें मिलता है सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंडर, जो कि मैक्सिमम 2 लाख तक हो सकता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो हमारा 1,65,000 है। तो ये जो है हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है हमारा। ओके। देन थर्ड हेड हमारा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें दो कंपोनेंट है, बैंक इंटरेस्ट। FD पे हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला है TDS काट के 90,000। TDS की रेट 10% है। मीन्स जो हमारा ग्रॉस अमाउंट रहा होगा वो होगा 1 लाख रुपीज। देन हमें सेविंग बैंक अकाउंट पे भी इंटरेस्ट मिला है जो कि 6,000 है। 6,000। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोट करने लायक बात है कि अंडर सेक्शन 80 TTA सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे मैक्सिमम 10,000 तक का हमें डिडक्शन मिल सकता है। तो ये जो 6,000 की वैल्यू है ये पूरी एग्जाम डिडक्टेड है। डिडक्शन आप इस पे क्लेम कर सकते हो। देन कुछ TDS के भी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, लाइक टैक्स डिडक्टेड सोर्स बाय एम्प्लॉयर 2 लाख रुपीज एंड बाय बैंक ऑन FD इंटरेस्ट 10,000। तो TDS क्या होता है बेसिकली कि टैक्स डिडक्टेड सोर्स होता है, मतलब इनकम मिलने से पहले ही एम्प्लॉयर या बैंक वगैरह टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं। अगर अंकित के केस में देखें तो एम्प्लॉयर ने 2 लाख डिडक्ट किया TDS, एंड बैंक ने FD को पे करते वक्त 10,000 का डिडक्ट करा है। ये सारी डिटेल्स हमें TDS शीट पे फिल करनी होती है, आगे हम देखेंगे। देन हम कुछ डिडक्शंस को देखेंगे। डिडक्शंस बेसिकली हमारी है, एक तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे 70,000 की है, जो कि अंडर 80C डिडक्शन अलाउड है ओल्ड टैक्स रिजीम में। देन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स RPF। RPF मींस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसमें 30,000 डिपॉजिट है, ये भी 80C में डिडक्टिबल है। देन डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ELSS म्यूचुअल फंड, इसमें 50,000 इन्वेस्टमेंट है, ये भी ATC के अंदर डिडक्शन में अलाउड है। देन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS, इसमें 70,000 का कंट्रीब्यूशन है, ये भी डिडक्शन अलाउड है ओल्ड रिजीम में। देन बॉट मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हिमसेल्फ 32,000। बेसिकली इसमें खुद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो उसमें भी डिडक्शन अलाउड होती है, पर मैक्सिमम 25,000 तक ही डिडक्शन अलाउड है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपकी 50,000 डिडक्शन होगी।
पर यहाँ पे वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000। बाकी की रेस्ट 7,000 विल बी टैक्सेबल। जो हमारी पीपीएफ, आरपीएफ और ईएलएसएस में डिडक्शन है, ये एटीसी के अंदर आती हैं। तो एटीसी में मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन मिल सकता है। तो अगर हम इन तीनों को देखें, ऐड करें, तो 70, 30, 150, तो ये तीनों 150 हो रही हैं। तो ये डिडक्शन ओनली अलाउड होगा। जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है, ये सेक्शन 80 CCD 1B के अंडर अलाउड है। ये एटीसी से सेपरेट होती है, तो इसकी भी डिडक्शन मिलेगी हमें पूरी। देन कुछ हमने एडवांस टैक्स पे करा है। लाइक अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा होती है तो आफ्टर टीडीएस आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। अंकित ने 20,000 का एडवांस टैक्स दिया है 1 सितंबर 2023 को, जिसका चालान नंबर और पीएसआर नंबर प्रोवाइडेड है। इसे हमें शेड्यूल आईटी में फिल करना होता है, ये सारी डिटेल्स को हम वीडियो में आगे देखेंगे। देन कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिस्क्लोजर है। लाइक उसके पास रेजिडेंशियल फ्लैट है, उसकी कॉस्ट दी है, एड्रेस वगैरह दिया है, कॉस्ट उसकी 65 lakhs है। देन ये रेजिडेंशियल फ्लैट इमूवेबल प्रॉपर्टी है। देन कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज के भी डिस्क्लोजर्स हैं, लाइक ज्वेलरी, फिक्स डिपॉजिट्स, कैश इन हैंड। ये सारी डिक्लेरेशन जरूरी होती है। सो इन्हें भी हमें शेड्यूल एल में फिल करना होता है। देन लास्ट में हमें इन सारी चीजों को एक्सेल यूटिलिटी में फाइल करने के बाद टैक्स कंप्यूट करना होता है। इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये हमारी एक्सेल यूटिलिटी है ITR2 की। हमने मैक्रोज इनेबल कर दिया है। अगर जो स्टार्टिंग में पॉपअप विंडो आई थी, अगर वो पॉपअप विंडो आ रही है, मीन्स आपका एक्सेल यूटिलिटी करेक्ट है। सबसे पहले हमें सबसे पहले हमें होम पेज पे इन सारी शेड्यूल्स को देखना है, लाइक पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन, देन शेड्यूल एज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, शेड्यूल 112A, देन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का शेड्यूल है, देन अदर सोर्सेज, देन डिडक्शंस के शेड्यूल्स हैं, एटीसी, एटीजी, एटीबी, देन चैप्टर 6A, देन एसेट्स एंड लायबिलिटीज का शेड्यूल है, देन ईसॉप्स के हैं, देन इनकम टैक्स का है, देन टीडीएस का है, देन लास्ट इन वेरिफिकेशन है। 31 शेड्यूल्स है हमारी पूरे एक्सेल फाइल यूटिलिटी में। हमें सारे फिल नहीं करने हैं, हमें कुछ 4-5 गिने चुने ही करने हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट ए जनरल को फिल करते हैं। देन पार्ट ए जनरल को फिल करते वक्त सबसे पहले हमें यहाँ पे, आप क्वेश्चन को देख सकते हो। क्वेश्चन मैं वीडियो के साइड में इंक्लोज कर दूंगा। बेसिक डिटेल्स दी हुई हैं। फर्स्ट नेम है अंकित सिंह, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे फर्स्ट नेम अंकित। मिडिल नेम कुछ नहीं है, देन उसको हम लीव कर देंगे। देन लास्ट नेम है सिंह। देन हम स्क्रॉल करेंगे। पैन नंबर में हम पैन नंबर फिल करेंगे। हमारे केस में पैन नंबर है ACFPS 1234H। सारे डिटेल्स हमें करेक्टली फिल करने हैं, एंड स्पेशली पैन एंड टेन नंबर्स को तो बिल्कुल ही करेक्ट फिल करने हैं। देन हमें एड्रेस फिल करना है। हमारे केस में एड्रेस है 39 संजय अपार्टमेंट, कैलाश कॉलोनी। नेम ऑफ प्रीमाइसेस में कैलाश कॉलोनी हम फिल करेंगे। देन रोड स्ट्रीट में भी हम कैलाश कॉलोनी फिल करेंगे।
एरिया में हम कैलाश कॉलोनी ही फिल कर देते हैं। देन हम टाउन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में न्यू दिल्ली का है, तो न्यू दिल्ली फिल करेंगे। स्टेट, हम स्टेट पे जब क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। इसमें आप खुद से फिल नहीं कर सकते हो, आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करना होगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, 9th नंबर पे दिल्ली है, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। कंट्री आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली इंडिया वो कर लेगा। देन हम इंडि स्टेटस उसका असिसी का सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल है या एचयूएफ। एचयूएफ मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर। हम यहाँ पे इंडिविजुअल का आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आपने अभी देखा कि ब्लैक स्क्रीन हो रही थी, बेसिकली ये मैक्रो जब हम इनेबल करते हैं एक्सेल में तो ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। ये थोड़ा होगा पर इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा इसकी वजह से। देन हम डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, जो कि है ओके। देन हम पिन कोड फिल करते हैं। ये सारी डिटेल्स क्वेश्चन में गिवन है, आपको जैसी है वैसी ही कॉपी कर देनी है। देन हमें ईमेल एड्रेस फिल करना है। देन मोबाइल नंबर्स, ये सारी चीजें हमें ब्लैंक छोड़ देनी है, मोबाइल नंबर 2 वगैरह। आप देख सकते हो कि ये इनकम टैक्स रिटर्न हम सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग फाइल कर रहे हैं, तो हम इसे ही क्लिक करने देंगे। देन यहाँ पे हम रेजिडेंशियल स्टेटस फिल करेंगे। जब आप इस पे राइट क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 3 ऑप्शन है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि अंकित बेसिकली इंडिया में पास 310 से वो रुका हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तो हम यहाँ पे उसको रेजिडेंट पे क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें इन सारी चीजों को ब्लैंक्स छोड़ देना है। ये जो भी ग्रे बॉक्स दिख रहे हैं इन्हें हमें फिल नहीं करना होता ना, इसमें हम कुछ फिल कर सकते हैं। हम सिर्फ ग्रीन बॉक्सेस को फिल कर सकते हैं। देन हमें कंडीशंस फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस को फिल करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम फर्स्ट कंडीशन को सेलेक्ट कर लेंगे, मीन्स कि वो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहा है या नहीं। इस कंडीशन को हम फिल कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में वो 310 डेज रुका था, तो ये कंडीशन हमारे लिए एप्लीकेबल होगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें न्यू टैक्स रिजीम से आईटीआर फाइल करना है या ओल्ड टैक्स रिजीम से। तो यहाँ पे वही बता रहा है, सेक्शन अंडर सेक्शन 115 बीएसी सबसेक्शन 6, अगर हम नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हम न्यू रिजीम में टैक्स फाइल करेंगे, और अगर हम यस ऑप्ट करते हैं तो हम ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स फाइल करेंगे। बेसिकली डिफरेंस ये है कि न्यू टैक्स रिजीम में ओल्ड टैक्स रिजीम के कंपैरिजन में कुछ डिडक्शन हमें कम मिलते हैं। और भी अदर प्रोविजंस होते हैं, टैक्स स्लैब्स डिफरेंट होते हैं, पर बेसिक या मेजर डिफरेंस यही होता है कि हमें डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम से ही आईटीआर फाइल करेंगे। तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन विंडो भी आ रही है, हम ओके क्लिक कर देंगे। ये इनबिल्ट ग्लिच है, इससे आपको घबराना नहीं है। देन
बाकी अदर चीजों को हमें नो पे क्लिक कर देना है। ओके, ये आर यू फाइलिंग रिटर्न अंडर सेवेंथ प्रोविजन टू सेक्शन 139, इन्हें हमें सब नो कर देना है। देन उसके बाद हमें आधार नंबर फिल नहीं करना है, हम हमारे क्वेश्चन में नहीं गिवन है। देन एक स्टेटमेंट है वेदर यू आर एन एफपीआई, यहाँ पे हमें नो सिलेक्ट करना है। देन यहाँ भी हमें नो करना है। ये बेसिकली वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी इफ एनी, तो हम तो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली नो कर देंगे। देन स्क्रॉल डाउन करना है। देन यहाँ पे एक स्टेटमेंट है वेदर यू आर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आप अगर प्रीवियस ईयर में किसी कंपनी में डायरेक्टर थे तो आपको यस करना है। हमारे केस में नहीं थे तो हम नो पे क्लिक करेंगे। देन हमको स्क्रॉल डाउन करना है एंड अगर और भी कोई स्टेटमेंट्स हैं तो उसे चेक कर लेने हैं कि जिन्हें फिल करना है नहीं। सारी डिटेल्स करेक्ट हैं। देन हमें राइट साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हमें वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए अगर यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आ रही है, मीन्स अगर हमारी हमने कुछ एक इंफॉर्मेशन नहीं फिल करी है, वो हमें बता रहा है। हमने एक अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स वाली इंफॉर्मेशन जो पूछ रहा है तो हमने वो फिल नहीं करी है, हम उसे फिल करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, चेक करेंगे वो इंफॉर्मेशन कहाँ है। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, तो आप यहाँ पे सिंपली नो क्लिक कर देंगे। देन अगेन आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने का क्या होता है कि हमारा जो शेड्यूल है, मतलब जो पार्टी जनरल है, ये पूरा वैलिडेट हो जाता है। मतलब सारी इंफॉर्मेशन एक बार चेक हो जाती है और कोई अगर इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो हमें वो पॉपअप विंडो के थ्रू वो पता चल जाती है। हम वैलिडेट करेंगे। एक अलर्ट आ रहा है कि शेड्यूल शीट पार्ट ए जनरल इज ओके, मीन्स हमारा पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, हम ओके करेंगे। देन हम शेड्यूल सैलरी पे जाएंगे। ये शेड्यूल सैलरी है। क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सैलरी हेड में बेसिक सैलरी है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस है, एचआरए है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, सर्वेंट अलाउंस है। सबकी अमाउंट रिस्पेक्टिव अमाउंट्स के सामने गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नेम ऑफ एम्प्लॉयर डालेंगे, बेसिक डिटेल्स। हमारे केस में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, एंटर करें। देखिए वो गलत जगह फिल हो गया था, ये बॉक्स है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। देन हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में, मीन्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर है, पेंशनर्स है या अदर्स है। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है तो हम सिंपली यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर लेंगे। नोटिस करने लायक बात है कि अदर्स पेंशनर्स करके भी है, उसे क्लिक नहीं करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और अदर्स जो बोल्ड लेटर्स में उसे क्लिक करना है। उसके बाद हमें 10 ऑफ एम्प्लॉयज फिल करना है। 10 नंबर है RTKA 12336A। 10 नंबर फिल करते वक्त बहुत ध्यान से फिल करना है और करेक्ट 10 नंबर डालना है, नहीं तो टीडीएस वगैरह करते वक्त हमें दिक्कत आएगी। देन एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, एड्रेस हमारे क्वेश्चन में गिवन है बिजनेस इनक्लेव गुरुग्राम हरियाणा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली बिजनेस इनक्लेव गुरुग्राम। स्टेट में हम हरियाणा सेलेक्ट कर लेंगे। टाउन में हम गुरुग्राम फिल करेंगे।
पिन कोड क्वेश्चन में गिवन है 1220 122001। बेसिक डिटेल्स हमारी फिल हो गई हैं। उसके बाद हम अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अंडर सारे सैलरी के कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे। ग्रीन बॉक्सेस में हम सबसे पहले बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, एलटीए, चिल्ड्रन अलावेंस, अदर अलावेंसेस। हमें यहाँ पे फिल नहीं टाइप नहीं करना होता है और ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट करना होता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ फिल नहीं कर सकते। देखिए मैं यहाँ पे फिल करूंगा तो ये अलर्ट आ रहा है, आप कुछ नहीं फिल कर सकते हैं। अमाउंट कॉलम में हम अमाउंट फिल करेंगे। बेसिक सैलरी 8,80,000 है। देन हम ट्रांसपोर्ट अलावेंस सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट अलावेंस नीचे जाएंगे, लीव ट्रेवल अलाउंस, अदर अलाउंस, कंट्रीब्यूशन, एन्युटी, कम्युनिटी ग्रेचुटी, फीस, कमीशन, ये सारे अलाउंस है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं है तो सिंपली हम अदर्स पे क्लिक कर लेंगे। अदर्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो कि ग्रे था वो यहाँ पे ग्रीन हो गया है अदर्स क्लिक करने के बाद। मीन्स यहाँ पे अब वो बता रहा है कि आप अदर्स को डिफाइन करो कि वो क्या है। तो यहाँ पे अदर्स में हम लिख देंगे कि वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारे केस में 40,000 का है। अभी आप देख सकते हो कि जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 है इसमें बस दो ही कॉलम है, दो ही रो है। हमें यहाँ पे और ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ऐड रोज 17 सबसेक्शन 1 पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कितनी रो चाहते हो। तो यहाँ पे हम 5 रोज ले लेते हैं। अब देख सकते हो कि रोज हमारी बढ़ चुकी हैं, 1 से 7 हो चुकी हैं। देन अगेन हम अब फिल करेंगे डिटेल्स। थर्ड डिटेल है हमारी डियरनेस अलाउंस की। क्लिक करेंगे, डियरनेस अलाउंस पे क्लिक करके जो कि है 2,20,000 की। देन उसके बाद HRA है, हाउस रेंट अलाउंस। HRA हमारा 2 lakhs के हैं, 2 lakh। देन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसमें एग्जम्पशन अलाउड होती है मैक्स 2,400 तक की। HRA में भी एग्जम्पशन अलाउड है पर कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं फिर फुलफिल करने के बाद। हमारे पास सिर्फ HRA कितना पेड है ये डिटेल्स है। तो हम इस केस में HRA के एग्जम्पशन नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास रेंट पेड वगैरह की डिटेल्स नहीं है। तो हम HRA कितना एग्जाम्प्ट होगा ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली आप सिर्फ यहाँ पे तो 2 lakhs कर दोगे और एग्जाम्पशन में भी इसको छोड़ दोगे। देन सर्वेंट अलाउंस है। ड्रॉप डाउन लिस्ट आप खोलोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे भी सर्वेंट अलाउंस नहीं है तो हम सिंपली यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करेंगे एंड अगेन हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कि ये सर्वेंट अलाउंस है। सर्वेंट अलाउंस हमारा है 12,000 का। ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो हमने सैलरी की बेसिक डिटेल्स सारी फिल कर दी कि बेसिक सैलरी कितनी थी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टियरनेस अलाउंस, HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वगैरह जो कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में आती है। हमारे पास कोई भी परक्विजाइट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। आप देख सकते हो क्वेश्चन को, सिर्फ कुछ सैलरी की डिटेल्स हैं, ना कि कोई परक्विजाइट्स या प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी वगैरह की कोई डिटेल नहीं है। तो हम इन सब सारे कॉलम्स को लीव कर देंगे, सबको लीव कर देंगे। आप नीचे देख सकते हो कि जो नेट सैलरी है वो 13,57,600 है। ओल्ड रिजीम में हमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद जो जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज होगी वो
13,07,600 होगी। बट ये नेट सैलरी नहीं है, मतलब चार्जेबल टू टैक्स। हमें कुछ डिडक्शंस, एग्जम्पशंस भी देने होंगे, क्योंकि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे एग्जम्पशन अलाउड है। तो एग्जम्पशंस को स्पेसिफाई करने के लिए हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेस इनकम क्लेम फॉर रिलीफ फ्रॉम टैक्सेशन अंडर सेक्शन 89A। यहाँ पे हम एग्जम्पशन देंगे। फर्स्ट रो पे क्लिक करेंगे और हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो 2400 एग्जामेशन है उसे देंगे। वो सेक्शन 1014 के अंडर अलाउड है, तो हम 1014 पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे 2400 राइट कर देंगे। और कोई तो एग्जामेशन नहीं है हमारे पास। सर्वेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी टैक्सेबल होता है, तो हम सिर्फ चिल्ड्रन एजुकेशन का एग्जामेशन देंगे। देन आप देख सकते हो कि हमारी जो अब इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज है वो रिड्यूस होके 13,05,200 हो चुकी है। तो हमने सैलरी की सारी डिटेल्स फिल कर दी। इसको वैलिडेट करेंगे। आप देख सकते हो अलर्ट आ रहा है कि शीट शेड्यूल एस इज ओके। मीन्स हमने सारी डिटेल्स अच्छे से भरी थी, अच्छे से और करेक्ट भरी थी। ओके करेंगे। देन क्वेश्चन को देखेंगे। सैलरी का सारा पार्ट हमने क्लियर कर दिया। देन हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल सैलरी के जस्ट राइट में क्लिक करेंगे। शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फिल करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी का एड्रेस हमारा क्वेश्चन में वही 39 संजय अपार्टमेंट, 39 संजय अपार्टमेंट है, टाउन न्यू दिल्ली फिल करेंगे। स्टेट में हम दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। कंट्री ऑटोमेटिकली इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा। पिन कोड फिल करेंगे। देन यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कौन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना है कि ओनर कौन है। तो यहाँ पे असेसी ही ओनर है, तो यहाँ पे हम सेल्फ पे क्लिक करेंगे। यहाँ देन यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि इफ इज द प्रॉपर्टी को ओन, मीन्स जो प्रॉपर्टी है इसका कोई और भी मालिक है। तो यहाँ पे तो कोई और मालिक नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली नो क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो ये सारी रोज ग्रे हो चुकी है, मीन्स हमें यहाँ पे इन्हें फिल नहीं करना है। और जो हमारी प्रॉपर्टी में शेयर है वो 100% है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं ही मालिक हूँ उस प्रॉपर्टी का। देन हमें स्क्रॉल डाउन करना है। देन हम टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करना है कि वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेट आउट है, या डिम लेट आउट है। तो ये सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, खुद के रहने के लिए है। तो इस पे सेल्फ ऑक्युपाइड पे हम क्लिक करेंगे। हमारे क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स है कि म्युनिसिपल टैक्स पे करा 20,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 1,65,000। तो इंटरेस्ट म्युनिसिपल टैक्स तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, तो कोई इसका रेलेवेंस नहीं रहता है। क्योंकि हमारी जीएबी सेल्फ ऑक्युपाइड में जीरो होती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड की हमें एंट्री करनी होती है, जो कि मैक्सिमम 2 लाख तक अलाउड है। यहाँ पे 1,65,000 है, तो हम इसे फिल कर देंगे। 2 लाख से लेस है वो। 1,65,000 को फिल करने के लिए हमें स्क्रॉल डाउन करना है। और आप देख सकते हो जो एच कॉलम है, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पे आगे लिखा भी है कि कैन नॉट एक्सीड 2 लाख इफ नॉट लेट आउट। तो ये तो सेल्फ ऑक्युपाइड है और 1,65,000 ही है, तो हम इसको यहाँ पे सिंपली फिल कर देंगे। ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे ये माइनस का साइन आगे आ चुका है। मीन्स मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी में हमारा लॉस है। इस लॉस को हम आगे सेट ऑफ कर सकते हैं, सैलरी से सेट ऑफ कर देंगे। हाउस प्रॉपर्टी में और हमें कोई डिटेल फिल नहीं करनी है। देन हमें इसे वैलिडेट करना है।
शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टीज ओके, ओके करना है। क्वेश्चन को देखेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी क्लियर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे मूव करेंगे। इसमें दो एलिमेंट्स है, बैंक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। एक्सेल फाइल खोलेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए ये ओएस करके एक शीट है, इस पर क्लिक करेंगे। ओएस मीन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सीट ओपन हो चुकी है। इसमें हमें एक तो एफडी से इंटरेस्ट मिला है और एक सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला है। तो एफडी के इंटरेस्ट के लिए हम, आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्रॉम डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड कोऑपरेटिव्स, यहाँ पे फिल करेंगे अमाउंट जो कि 90,000 है। एंड जो सेविंग बैंक से हमें इंटरेस्ट मिला है 6,000 का, उसको इसके ऊपर फिल करेंगे सेविंग बैंक से। ये 6,000 है। ओके, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारी 90 प्लस 6, 96,000 है। और कोई डिटेल्स नहीं गिवन है। स्क्रॉल डाउन चेक करेंगे, और कोई डिटेल हमें फिल नहीं करनी है इस शीट पे। वैलिडेट करेंगे इसको। अदर सोर्सेज सीट इज ओके, ओके करेंगे इसको भी। देन आप क्वेश्चन को देखोगे तो हमने अदर सोर्सेज के भी डिटेल्स फिल कर दी। देन कुछ डिडक्शंस हैं, इन डिडक्शंस की ट्रीटमेंट हमें करनी होगी। डिडक्शन की ट्रीटमेंट के लिए हम चैप्टर 6 से ओपन करेंगे। एटीसी की डिडक्शंस के लिए ये बी आई ए करके एक शीट होगी, इसको ओपन करेंगे। चैप्टर 6 से, चैप्टर 6 ए ओपन हो चुका है। इसमें आप देख सकते हो कि एटी सी, एटी ट्रिपल सी, एटी सी सी डी, एटी सी सी डी 1 बी की डिडक्शंस हैं, डीडीपी, ई, डबल ई, ये सारी डिडक्शंस हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम अपनी एटीसी की डिडक्शंस देखेंगे। एक तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 70,000 है। देन एक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 30,000 है, 1 लाख हुआ टोटल। एंड देन एक ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में 50,000 है। एटीसी में 1,50,000 मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है, और इनकी टोटल भी 1,50,000 हो रही है। तो हम सिंपली एटीसी के अगेंस्ट 1,50,000 फिल कर देंगे। सिस्टम कैलकुलेटेड भी 1,50,000 आ रहा है। अगर यहीं पे हम 2 लाख फिल करेंगे तो आप देख सकते हो कि वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली 1,50,000 ही कैलकुलेट करी है, क्योंकि एटीसी के अंदर मैक्सिमम 1,50,000 की ही डिडक्शन अलाउड है। तो इसको हम 1,50,000 ही कर देंगे। देन एक डिडक्शन है हमारी, ये तीनों डिडक्शन ऊपर की क्लियर हो गई। देन एक एनपीएस पे कंट्रीब्यूशन है 70,000 का, इसको भी फिल करेंगे। ये एनपीएस की कंट्रीब्यूशन 80 CCD 1B के एक एनपीएस की भी कंट्रीब्यूशन है। एनपीएस की कंट्रीब्यूशन 80 CCD 1B के अंडर आएगी। इसमें कंट्रीब्यूशन 70,000 का है, 70,000 राइट कर देंगे। मैक्सिमम 80 CCD 1B में 50,000 की डिडक्शन अलाउड है। हमारे केस में 70,000 है, मीन्स जो रेस्ट 20,000 है वो टैक्सेबल होगी। सिस्टम कैलकुलेटर भी आप देख सकते हो 50,000 ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो हमने 4 डिडक्शन क्लियर कर दी, एटीसी की 3 एंड एक एनपीएस की। हमारे पास एक डिडक्शन और है, बॉट मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हिमसेल्फ 32,000। मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन सेक्शन 80D में अलाउड है। 80D
को हम यहाँ से ओपन करेंगे। चैप्टर 6A के लेफ्ट में है वो, एटीडी पे क्लिक करेंगे। शेड्यूल एटीडी ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि इफ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन, यहाँ पे हम नो करेंगे। नो करने के बाद हम यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस का कॉलम है यहाँ पे फिल करेंगे। जो हमने हेल्थ इंश्योरेंस पे जो एक्सपेंसेस बियर करा था वो 32,000 का करा था। 32,000 फिल करेंगे। आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली ये 25,000 अब इसके शो हो रहा है। मीन्स एटीडी में आप अगर सीनियर सिटीजन नहीं हो तो मैक्सिमम आप 25,000 तक का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। हमने 32,000 पे करा था पर हम 25,000 ही क्लेम कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमें 25,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। देन हमें यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है कि वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन। नो, हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है, तो हमने सारी डिरेक्शंस को क्लियर कर दिया। इस शीट को हम वैलिडेट करेंगे एंड चैप्टर 6A की सीट को भी हम वैलिडेट करेंगे। इससे पहले एक डिडक्शन हमारी रह गई थी 80 TTA का। अभी वीडियो में पहले आपको बताया था मैंने कि सेविंग जो सेविंग अकाउंट होता है उस पे आपको उसके इंटरेस्ट पे आपको मैक्सिमम 10,000 तक की डिडक्शन मिलती है। हमारे केस में 6,000 हमने सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट अर्न करा था, तो हमें उसकी डिडक्शन भी क्लेम करनी होगी। तो शेड्यूल 6A ओपन करना है हमें फिर से एंड स्क्रॉल डाउन करना है एंड सेक्शन 80 TTA पे हमें 6,000 फिल कर देनी है। इतना एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंडिचर हुआ है। ओके, देन हमें वैलिडेट करना है। ओके, हमने 80D भी वैलिडेट कर दिया, चैप्टर 6A भी वैलिडेट कर दिया। क्वेश्चन को देखेंगे। अभी हमें अब टीडीएस की डिटेल्स हमें फिल करनी है। टीडीएस की डिटेल फिल करने के लिए हम स्क्रॉल करेंगे एंड लास्ट में टीडीएस की शीट है उसे ओपन करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज वेरीफाई द 10 डिटेल्स। ओके करेंगे। सबसे पहले टीडीएस 1 में हम 10 नंबर फिल करेंगे एम्प्लॉयर का, क्योंकि हमारे केस में था RTK 12336A। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, मतलब सैलरीज हेड में कितनी इनकम चार्जेबल है। हम सैलरी के शेड्यूल पे जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज हैं 13,05,200 से नोट करेंगे। टीडीएस की सीट पे जाएंगे और यहाँ पे फिल करेंगे 13,05,200। जो टोटल टैक्स डिडक्ट हुआ है टीडीएस पे, एम्प्लॉयर ने डेट करा था वो 2 लाख था, क्वेश्चन में गिवन है। आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयर ने जो टीडीएस डिडक्ट करा था वो 2 लाख है। इसको हम टीडीएस 1 में फिल करेंगे। ओके, आप देख सकते हो टोटल भी 2 लाख है। देन जो बैंक ने टीडीएस एफडी पे डिडक्ट एफडी बैंक ने एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट करा था 10,000 का, उसे हम टीडीएस 2 में फिल करेंगे। सो बेसिकली हमें कॉलम 2 में फर्स्ट रो में सेल्फ पे क्लिक करना है
देन हमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मैक्स 22-23 है, हमें इसी क्लिक कर लेना है। देन टीडीएस ब्रॉड फॉरवर्ड जो है कॉलम 6 में, ये 10,000 का टीडीएस हम यहाँ पे फिल करेंगे। देन कॉलम 7 में भी हम 10,000 ही फिल करेंगे। अच्छा, कॉलम 7 में फिल नहीं होगा। देन हम कॉलम 9 में आएंगे। कॉलम 9 में क्लेम्ड इन ओन हैंड्स में, मतलब टीडीएस कितना कटा है, ये यहाँ पे हम 10,000 फिल करेंगे। और कॉलम 10 के इनकम में हम, जो हमारी एफडी थी, अगर आप क्वेश्चन देखें तो जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस थी, इस पे जो एफडी पे मैंने इंटरेस्ट अर्न करना था, वो नेट ऑफ टीडीएस 10% का नेट दिया, मतलब 90%। ये 90% जो है, ये 10% टीडीएस कटने के बाद है। मीन्स अगर अगर इसमें हम 10% टीडीएस जो कट गया उसे फिर से ऐड कर देंगे, तो जो हमारी ग्रॉस अमाउंट हो जाएगी वो 1 लाख रुपीज हो जाएगी। तो जो हमारी 1 लाख पे 10% टीडीएस करके 90,000 मिला है, तो उस इनकम को यहाँ पे हम राइट करेंगे कि 1 लाख हमारी इनकम थी। देन इन सारे कॉलम्स को, हम रोज को छोड़ देंगे। देन हेड ऑफ इनकम कॉलम 12 जो है, उसमें हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेलेक्ट कर लेंगे। ओके। फर्स्टली हमने एम्प्लॉयर ने जो टीडीएस डिडक्ट करा था उसकी डिटेल फिल करी। देन बैंक के एफडी पे जो, बैंक के एफडी के इंटरेस्ट पे जो टीडीएस का था, कटा था, उसकी डिटेल फिल करी। इस शीट को हम वैलिडेट करेंगे। अभी कुछ सारी डिटेल्स मिसिंग है, हमें टैन नंबर फिल करना है, ग्रॉस अमाउंट फिल करना है। अभी कुछ टीडीएस टू में मिसिंग डिटेल्स हैं। अभी शेड्यूल टीडीएस में कुछ मिसिंग डिटेल्स हैं, हमें टैन नंबर फिल करना है। टैन नंबर हम फिल कर देंगे। हमारे पास बैंक का टैन नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जो जो बिजनेस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, इसी का टैन नंबर ले लेंगे, जो कि है RTKA 12336A। और भी डिटेल हम चेक करेंगे, और तो कुछ नहीं लग रहा है, इसको वैलिडेट करेंगे। अभी हमें ग्रॉस अमाउंट, SR नंबर 1 शेड्यूल TDS 2। ओ, यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट हमने मिस कर दिया था। जो ग्रॉस अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज है। इसको फिल करेंगे। देन अगेन हम वैलिडेट करेंगे। एक डिटेल और मिसिंग है। TDS claimed in own hands।
तो अभी आपने देखा कि हमने टीडीएस वन में जो एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट करी थी उसकी डिटेल्स फिल करी है। देन आप जो बैंक ने एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट करी है उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। उसके लिए हमें सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है एंड टीडीएस टू पे। तो अभी आपने देखा कि जो एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट करा था, जो एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट करा था उसको हमने टीडीएस वन फॉर्म में फिल करा सारी डिटेल्स। अब जो बैंक ने एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट करा था उसकी डिटेल्स हम टीडीएस फॉर्म टू में फिल करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। आप देख सकते हो क्वेश्चन में कि जो बैंक के एफडी पे इंटरेस्ट हमें मिला था वो टीडीएस काट के मिला था 90,000। मीन्स ये नेट अमाउंट था जिसपे 10% टीडीएस कटा था। मीन्स जो ग्रॉस अमाउंट रहा होगा वो 1 लाख रुपीज रहा होगा। उस पर 10% इंटरेस्ट कट के हमें नेट अमाउंट 90,000 मिला। ओके। और यहाँ पे भी गिवन है कि बाई बैंक ऑन एफडी इंटरेस्ट टीडीएस डिडक्टेड रुपीज 10,000। तो सिंपली हम क्या करेंगे, टीडीएस शीट पे टीडीएस टू में हम सबसे पहले यहाँ पे हम कॉलम टू में सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। देन 10 नंबर में हमारे पास बैंक जो डिडक्टर है उसका 10 गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो एबीसी लिमिटेड का 10 है अभी के लिए उसे ही यहाँ पे टाइप कर देंगे। देन उसके बाद कॉलम 4 के बाद हमें कॉलम 9 पे आना है। नहीं, देन कॉलम 4 के बाद हमें कॉलम 7 पे आना है और इसमें हमें जो टीडीएस डिडक्टेड ओन हैंड्स है इसे फिल करना है। मीन्स अपने हाथों में कितना टीडीएस कटा है जो कि 10,000 है, उसे फिल करेंगे। देन कॉलम 9 में हम क्लेम्ड इन ओन हैंड्स भी 10,000 फिल कर देंगे। देन उसके बाद हम कॉलम 11 में जो ग्रॉस अमाउंट है, जो हमारी टीडीएस की ग्रॉस अमाउंट थी 1 लाख रुपीज थी, जो उसे फिल करेंगे। देन यहाँ पे जो कॉलम 12 में हम हेड ऑफ इनकम सेलेक्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, सेलेक्ट करेंगे। ये टीडीएस की जो एम्प्लॉयर ने और बैंक ने डिडक्ट की थी ये ऑटोमेटिकली पार्ट बी में रिफ्लेक्ट हो जाएगी सारी डिटेल्स। इसको वैलिडेट करेंगे। टीडीएस शीट हमारी सही है, ओके पे क्लिक करेंगे। देन क्वेश्चन को हम देखेंगे। हमने सारे डिडक्शंस क्लियर कर दिए, सारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, अदर सोर्सेज भी क्लियर कर दी। देन अब हम एडवांस टैक्स की ट्रीटमेंट करेंगे। तो एडवांस टैक्स की डिटेल्स गिवन है, टैक्स पेड कब करा था 20,000, देन बीएसआर नंबर, चालान नंबर वगैरह। तो एक्सेल यूटिलिटी हम ओपन करेंगे और एडवांस टैक्स की डिटेल्स फिलिंग के लिए हम आईटी शीट को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम बीएसआर, यहाँ पे आईटी शीट ओपन हो गई है। यहाँ पे सबसे पहले हम बीएसआर कोड फिल करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है 0001640। देन डेट ऑफ डिपॉजिट है 01092023। देन सीरियल नंबर ऑफ चालान है 00048 एंड अमाउंट है 20,000। ये एडवांस टैक्स पेड की डिटेल है। असेसी ने सेल्फ असेस करके टैक्स पेड करा था, उसकी डिटेल्स हमने फिल कर दी। वैलिडेट करेंगे। शेड्यूल इनकम टैक्स इज ओके। क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिस्क्लोजर्स हैं, इन्हें भी हमें डिस्क्लोज करना होगा। एक तो रेजिडेंशियल फ्लैट है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है एंड बाकी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। एक्सेल यूटिलिटी ओपन करेंगे एंड एएल करके शीट जो होगी उसे ओपन करेंगे। ये शीट शेड्यूल एएल से नेम्ड है। इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो कि एंड ऑफ द ईयर होती हैं उनकी डिटेल्स होती है। ये तभी अप्लीकेबल होती है जब टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा हो जाती है।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉलम ए में ये क्वेश्चन है कि डू यू ओन एनी इमूवेबल एसेट। तो यस, हमारे पास एक रेजिडेंशियल प्लॉट है, फ्लैट है, प्लॉट नहीं है, उस पर यस करेंगे। देन हम उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे इमूवेबल एसेट्स की। हमारे पास एक रेजिडेंशियल फ्लैट है, रेजिडेंशियल फ्लैट सिंपली लिख देंगे। एड्रेस हम उसका स्पेसिफाई करेंगे, 38 इलियारा। नेम ऑफ प्रीमाइसेस है ग्रीन हाइट्स अपार्टमेंट। ओके। रोड स्ट्रीट की डिटेल में ये गुरुग्राम में है, तो हम यहाँ पे गुरुग्राम लिख देंगे। एरिया में भी हम गुरुग्राम लिख देंगे। टाउन में भी हम गुरुग्राम फिल कर देंगे। स्टेट में हम हरियाणा सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड है गुरुग्राम का 122001। एंड जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की वर्थ है वो 65 लैक्स है, फिल करेंगे 65 लैक्स। और कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो बाकी कॉलम्स को लीव कर देंगे। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड अभी हमें अब मूवेबल एसेट्स की डिटेल्स को डिस्क्लोज करनी है। इसमें ज्वेलरी वगैरह, व्हीकल्स, बैंक, शेयर, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह है, तो उसकी हमारे क्वेश्चन में हमारे पास ज्वेलरी है जो कि हमने 2022 में परचेज करी थी 4,50,000 की। उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे। देन हमारे पास एक फिक्स डिपॉजिट है सेविंग बैंक्स पे जो कि 12 लैक्स का है। इसको हम बैंक के अंदर यहाँ पे 12 लैक्स एफडी हमारे पास है। देन हमारे पास कुछ कैश इन हैंड्स है 45,000, उसे भी राइट कर लेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे तो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज कर दी, ज्वेलरी डिस्क्लोज कर दी, फिक्स डिपॉजिट डिस्क्लोज कर दी, कैश भी कर दिया। इसको वैलिडेट करेंगे। शेड्यूल एएल इज ओके। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमने मैक्सिमम सारी डिटेल्स फिल कर दी है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम एक रह रहा है, हमें जो हाउस प्रॉपर्टी में 1,65,000 का लॉस हुआ था, ये हाउस प्रॉपर्टी में, इसे सेट ऑफ करना है। इसको सेट ऑफ हम सैलरी से करेंगे, सैलरी एड से। सेट ऑफ के लिए हम CYLA BFLA शीट को ओपन करेंगे। इस शीट को ओपन करेंगे, आप देख सकते हो कि जो सैलरी के हेड में हमारी जो अमाउंट था वो यहाँ पे शो हो रहा है। हाउस प्रॉपर्टी भी शो हो रहा है 1,65,000 का, पर ये सेट ऑफ नहीं है। सेट ऑफ करने के लिए हम सिंपली कैलकुलेट सेट ऑफ पे क्लिक करेंगे। अब अभी आप देख सकते हो कि ये हाउस प्रॉपर्टी का जो 1,65,000 का लॉस था, ये सैलरी से सेट ऑफ हो चुका है। तो जो अभी करंट ईयर की जो इनकम रिमेनिंग है वो 11,40,200 है। सेट ऑफ हो गया, इसको हम वैलिडेट करेंगे। देन सेट ऑफ के बाद हमें
देन सेट ऑफ के बाद हमें पार्ट बी TITTI करके एक शीट होगी, इसे ओपन करनी है। आप देख सकते हो ये पार्ट बी है, इस पे टोटल इनकम कंप्यूटेशन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैलरीज हेड में जो सैलरी चार्जेबल थी टैक्स टैक्स के अंडर, वो 13,05,200 शो हो रही है। देन आगे टोटल हेड वाइज इनकम है, शो हो रही है। देन लॉसेज हैं, देन करेंट ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, टोटल डिडक्शंस वगैरह हैं। इस पे जो टोटल इनकम है जो टैक्सेबल होगी वो कैलकुलेट हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टोटल टैक्सेबल इनकम बन रही है हमारी, वो 10,05,200 हो रही है, सारे लॉसेस डिडक्शंस को सेट ऑफ वगैरह करने के बाद। इस शीट को हम स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड पार्ट बी पे मूव करेंगे। पार्ट बी पे आप मूव करने के बाद सीरियल नंबर 18 में आपको बैंक डिटेल्स फिल करनी है, क्योंकि आपको आप इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हो बिना बैंक डिटेल्स फिल किए हुए, क्योंकि आपने टीडीएस वगैरह की डिटेल्स प्रोवाइड करी थी। बैंक की डिटेल्स फिल करने के लिए हमें यहाँ पे डिटेल्स गिवन है, बैंक नेम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, IFSC कोड वगैरह हम यहाँ पे फिल करेंगे। सीरियल नंबर 18, UPIN 0539783, सॉरी गलत जगह फिल हो गई है। UPIN 0539783, बैंक का नेम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर है 39200021202120001234 एंड टाइप ऑफ अकाउंट है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम सेलेक्ट कर लेंगे सेविंग्स अकाउंट्स। बैंक डिटेल फिल करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और सीरियल नंबर 18 में ये कुछ स्टेटमेंट है कि डू यू होल्ड एनी बेनिफिशियल ओनरशिप और यू हैव एनी फॉरेन इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सो हमें यहाँ पे सीरियल नंबर 19, यहाँ पे हमें ग्रीन बॉक्स पे क्लिक करना है एंड नो पे क्लिक कर देना। मीन्स हमारी फॉरेन से कोई भी इनकम नहीं है, ना ही मैं किसी फॉर्म में बेनिफिशियल ओनर हूँ। ओके, हमने बैंक डिटेल फिल करी। ये सारी डिटेल्स ब्लू कलर वाली ऑटोमेटिकली एडजस्टेड है, हमने फिल नहीं करी है। इस शीट को हम वैलिडेट करेंगे। पार्ट बी शीट जो है वो ओके है। इसके बाद हम सबसे लास्ट शीट पे वेरिफिकेशन शीट पे आएंगे। वेरिफिकेशन शीट के बाद कोई भी शीट नहीं है, और आप देख सकते हैं इस पे ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन आ गई है। मींस अंकित सिंह सन डॉटर ऑफ, आप डिटेल यहाँ पे फिल करोगे, मोहन सिंह फादर्स नेम। देन आप डिक्लेरेशन पे सेल्फ
सिलेक्ट करोगे। देन पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ चुका है, डेट्स वगैरह भी, इसको आप वैलिडेट करोगे। देन आप पार्ट ए जनरल पे आओगे एंड कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करोगे। अगर आपकी सारी डिटेल्स करेक्टली फिल्ड होंगी तो ये कैलकुलेट टैक्स स्मूथली हो जाएगा। टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। एक बार हम होम पेज पे जाएंगे। इन सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद हमें कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। देन हमें जनरेट जेसॉन पे क्लिक करना है। अगर आपने सारी डिटेल्स सही से फिल करी होगी तो ये ऑटोमेटिकली और टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। हमने जो CYLA BFLA सीट को वैलिडेट नहीं करा था। हम ओपन करेंगे, एरर आ रहा है वो। जो हमने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ करा था वहां पे कुछ एरर दिख रहा है। कैलकुलेट सेट ऑफ फिर से क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करेंगे, वैलिडेट करेंगे हम। देन अगेन हम जनरेट जेसॉन पे क्लिक करेंगे। नहीं नहीं, उससे पहले हमें कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना होगा। आई होप अभी टैक्स हमारा कैलकुलेट हो जाए। देन आफ्टर क्लिकिंग ऑन कैलकुलेट टैक्स, देन क्लिक ऑन जनरेट जेसॉन। यहाँ पे एक अलर्ट है। ये अलर्ट आई डोंट नो किस रीजन से आ रहा है, पर हमारा कैलकुलेट टैक्स टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। क्योंकि आप देख सकते हो कि वेरिफिकेशन शीट के बाद हमारे एक्सेल यूटिलिटी में और कोई शीट नहीं थी। बट जब हमने कैलकुलेट टैक्स करा तो एक एंड देन एक जेसॉन जनरेट करा तो एक समरी करके शीट ओपन हो चुकी है। इस शीट पे आप देख सकते हो कि समरी शीट है, ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं एंड सारी डिटेल्स हैं कि सारे सेक्शन के अंदर, सारे हेड्स के अंदर कितना टैक्स कैलकुलेट होके आया है। तो ये सारे जो हमने करा है इन प्रैक्टिकल, इसका ये एंड रिजल्ट है। आपको प्रैक्टिकल्स के एंड में यही यही समरी शीट जनरेट करनी होगी और इसका एक फोल्डर बना के डेस्कटॉप पे सेव करना होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, मैं जल्द से जल्द इस डाउट को क्लियर करूंगा। आपको सिंपली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं ये एक्सेल फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दूंगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।